India. I, Assistant Professor Reena Mishra, welcomes you all to the fourth episode of Crash Course series for TYBCOM Semester 5. Today we have Mr. D.A. Kembulkar sir from S.K. Somiya College of Arts, Science and Commerce to deliver the session. Welcome, sir. Yeah, thank you. I thank sir on behalf of entire S.S.T fraternity for accepting the invitation. Today, sir, this is our gratitude to have you here for this session. Sir is HOD of accountancy at his college. He is examiner, moderator, as well as the paper setter for UG and PG level. Moreover, he is having many years experience of this subject, financial accounting. So now I will request Kembulkar sir to take the charge of the session and start with his lecture. Thank you Sir, very much, over madam. to you. Yeah. Thank you very much, madam. First of all, for inviting me for this particular session. Okay. Good morning, the students. Okay. Today here we are for the subject financial accounting semester 5. The exams is starting from 26th of October, as you are aware of. I will be starting first of all with the paper pattern, and then I will be going the topic wise. At the same time, I will suggest the students that when I will be going topic wise, any student who is having the doubt can ask the same even during the session. There will not be any sort of disturbance from your end. Okay, so for your doubts are concerned. So when you will be going by topic wise, there only you can ask the doubts. So first of all, if you have gone through the paper pattern, it's question number 1, objectives, question number 2, 3, and 4 practical questions, and then question number 5, that will be your theory question. Correct? Now, when you are going for the examination, there will be some sessions from my side how you can proceed for the examination. Number 1 thing is that when you are going for the examination, first you have to start with question number 1. Always, you have to plan how you can attempt all these 5 questions within the given time. So what planning you should have? See, the question number 5 is going to be a theory question which requires the maximum time. So you have to cover the first 4 questions at earliest, and then you have to give the maximum time for question number 5 as it is going to be the theory question. Correct? Coming back to question number 1, now there are 4 options so far the paper setting is concerned. As a paper setter, the university is giving the 4 options. Number 1, we can have fill in the blanks. Number 2, we can have MCQs. Number 3, we can have match the pair. And number 4, we can have true or false. So out of these 4, any 2 patterns will be there in the examination, divided into 2 parts as question number 1A and question number 1B. Both will be containing 12 questions, and out of those 12, you have to attempt any 10. Correct? Now, 2 things I have to specify here. Number 1, when you are attempting these 12 questions, please don't change the order of the questions. I repeat, please don't change the order of the questions. Many times we find that while checking the paper that students is attempting from question number 1A, they are attempting, let us say, number 2. After that, they are attempting number 6. Then attempting number 10. Then they are attempting number 3. So please don't do it. It will be a risk factor. So for your paper assessment is concerned. And moreover, you are aware that the financial accounting, it is going to be an online assessment. So another session is that you have to, if possible for you, you attempt the question, your exam with blanking, especially for the all 4 papers which are going to be checked online. That is your financial accounting, cost accounting, then economics and MHRM. These 4 papers will be checked online. So examiners will be getting the scan copy of your paper. So it is suggested to go for black pen, number 1, and number 2, you should have legible handwriting, proper handwriting, give proper space, avoid overwriting while you are writing the papers. Okay. So question number 1, again coming back, let us say that question number 1A is MCQ. Okay. Now, first of all, it's expected that when you are attempting MCQ questions, you have to rewrite the statement. Okay. See, there you will be given either 3 or 4 options. It depends. Financial accounting, if you have observed the previous question papers, sometimes there are 3 options given, sometimes there are 4 options given.
So either whatever it is there, you have to rewrite the statement, number one, and number two. So far possible, my session will be attempt all 12 questions. You may or may not have the confidence of the two questions of that, okay? Because actually you are supposed to attempt only 10. But still, I will say go for 12. That out of 12, even if you make mistake in two questions, okay, still you will be getting full marks. That is 10 out of 10. Same way when you go for B part. So let us say that B part is true or false. Now, so far true or false is concerned, there is no need to rewrite the statement. I repeat, in case of MCQ, rewrite the statement. In case of true or false, no need to rewrite the statement. Just put your numbers 1 to 12 and write your answer whether it is true or it is false. Again, while attempting this, again I will say attempt all 12. So still, if you may miss out two questions of that, or there is a mistake in two questions, there will be 10 correct questions and you will be getting 10 out of 10. Correct? Now, this entire process of question number one we are attempting, try to see that, or still there are 20 days more in your hand. Today is 5th and your exam is going to be on 26th. So still 20 days are there for your practice. You take out any question paper, university question paper. Okay. If possible, take the last year's. If you are having the textbook with you, either of S.S.T publication or Manan publication, on the last pages, you will find the question paper over there along with the solution. So please try to see that you can attempt that question within 25 minutes. Okay. Another thing is that when you are attempting this question number one, the examiner will take that much care that so far your syllabus is concerned, there are 5 topics. All 5 topics will be covered in question number one. That is sure. Okay. Now about question number 2, question number 3, and question number 4. Now there is no specification from the university that what will be the order of the question. That is, which topic will be asked in question number 2 or 3 or 4. At the same time, what will be the option given? Means if question number 2 is final account, let us say, then in option to that, what will be the question? There is no specification from the university. So it is all guesswork for you. No guarantee what will be there. But normally we have observed that so far university papers are concerned, so far this pattern has been introduced at university level. At no point, in no examination, they are asked final account in option to that final account. Now, what I think what I'm right now suggesting, you should have prepared that way only. That there are total 5 topics in your syllabus. Out of that 5 topics, 4 are practical. That is your final account, then internal reconstruction, then buyback of shares, and then investment accounting. These 4 topics are there, which are practical, and the last one, ethics, is a purely theory question. So question number that theory ethics is for question number 5. So far your question number 2, 3, and 4 are concerned. You will have the questions from the first 4 practical chapters. Now, again, the thing is that whether there will be a full question of 20 marks or there will be combination of 10 plus 10, again, nothing has been specified. Okay. If you have gone through the latest paper, that is of November 2022. I repeat, November 2022. That is the last regular exam conducted in November 22. So there it was final account as question number 2 for 20 marks. And then in option to that, there was 2 questions of 10 marks each. One was based upon internal reconstruction for 10 marks and the other one was buyback for 10 marks. So your option was final account, 120 marks. Of course, that was covering candle account as well as balance sheet, both. So one, question number 2, 20 marks final account, or in option to that, internal reconstruction for 10 marks and then buyback for 10 marks. Then question number 3, again it was 20 marks full question of internal reconstruction, and then in option to that, there was again 2 questions, one for 10 marks, question number 3A for 10 marks, and it was, yeah,
preparation of profit and loss account only, and plus for another 10 marks, there was investment accounting. Of course, it was investments in shares, equity shares. And then question number 4, it was again investment accounting for 20 marks, where you had investments in bonds. And in option to that, there was another question of full 20 marks that was on buyback. So that was a pattern so far your November 2022 exam is concerned. Now, when you are having these 4 topics, what you are supposed to do from exam point of view when you are preparing, you have to rank the chapters as per your preparation, as per your comfort level, as per your likings. Okay. So rank these chapters as, okay, out of these 4 topics, which is the most easy or you are the most comfortable. Let us say you are most comfortable in, say, investment accounting. Then number 2, it may be your buyback of shares. Number 3, it may be your internal reconstruction. And then number 4 may be final account. I personally suggest one thing for you. So for your selection of the question is concerned, if possible, don't attempt final account. It's not because that final account is difficult. Absolutely not. Final account is the most simple chapter according to me. But the problem is that the presentation of solution of final account and the time consumption for solving one question of final account is a big question for you. So if you can avoid it, well and good. Okay, because you have to draw, you have to first draw that entire balance sheet and P&L account. Then you have to prepare all those notes. Okay, and that way it's a lengthy process. So if possible, my suggestion is that don't go for. Of course, in option, the whatever chapter is there, you are not prepared for the same, or the question you can't get that properly. In that case, yes, of course, you have to go for the final accounts. Please remember, many students ask me, सर फाइनल अकाउंट का हमको टाइम नहीं मिला, हमने खाली बैलेंस शीट ड्रॉ करके आए, कुछ लिखा नहीं बाकी, खाली ड्रॉ करके आए, पूरा फॉर्मेट करके आए, तो कितना मार्क्स मिलेगा? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, सिर्फ बैलेंस शीट का अगर आप फॉर्मेट बना के आते और उसमें अगर आप कुछ फिगर वर्क नहीं लिखा हुआ है, यू आर गोइंग टू गेट 0 marks. Because I'll simply quote that suppose you have a particular question like internal reconstruction का question is there and you are asked to write journal entries. तो सपोज एक जर्नल एंट्रीज में आपने खाली जर्नल एंट्री लिखा लेकिन अमाउंट नहीं लिखा है, तो वो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा? द आंसर इज 0 marks. बिकॉज इफ यू डोंट मेंशन इन द फिगर, that is counted as incomplete answer. So incomplete answer, you are not going to get the marks. Okay, so whatever you write, there must be correct figures over there. अगर फिगर करेक्ट है, एंट्री भी करेक्ट है, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. क्लियर? नाउ, so what you have to do that after attempting this question number 1, just check what is there in question number 2, what is there in question number 3, and what is there in question number 4. Okay, then select a proper question. Now what will be your selection? Suppose you are selecting a question of 20 marks on investment accounting. Okay, now whatever method you have so far done for solving one question of investment accounting, please follow the same, because you are already having 20 days. At this point of time, don't try to change your method of solution. I repeat, at this point of time, don't change any method. You go for various books, you go for various people, you go for various teachers. There may be the thing that each one will be having his own method of solving the question. So for what you have learned in your college, okay, please follow the same one. Okay, now suppose you have selected the question of investment in debentures and it has been given for 20 marks. Please remember that so far debenture accounting is concerned, sorry, investment accounting is concerned, you have to prepare only the ledger. Investment accounting में कभी भी आज तक जर्नल नहीं पूछा है और पूछेंगे भी नहीं. They will ask you only the ledger. Okay, so far investment accounting is concerned, अगर डिबेंचर का आपको क्वेश्चन आता है, there is a standard question there, that number 1 there will be opening balance. Okay, then there will be total 4 transactions given in the question. Out of these 4 transactions, 2 transactions will be of purchases, 2 transactions will be of sales. Correct?
Out of these two transactions of purchase and sale, each one will be of X interest and other one will be of cum interest. And then there will be meantime the transaction for interest received, and then at the end you might be given the market value of the investment. So this is a standard thing in so far investment accounting question is concerned, investment in debenture suppose. Okay. So when you're solving this question, you have to mark certain important things. When you read this question, number one, check what is the rate of interest. Okay. Number two, check what are the dates of payment of interest. पहले तो ये दो चीज आपके दिमाग में फिक्स कर दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो चीज काम का चीज है. ओके, सो आई रिपीट, नंबर वन, check what is the rate of interest. Okay, and number two, what are the dates of payment of interest. Then number three, check what is your year end. If your year end and date of payment of interest both are one and the same, for example, normally what you find that question is stating that year ending is 31st March. Okay, and suppose in the question you are given the interest is paid on 30th September and 31st March. So ये जो second interest का date है आपका, that is 31st March, is matching with year ending, that is 31st March. So when both these dates are the same, so in that case accrual of interest का concept नहीं आएगा. जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया है उनको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से मैं क्या बोल रहा हूँ. एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं आएगा. हाँ, लेकिन अगर ये दो डेट्स अलग अलग है तो फिर एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा. नाउ क्या कहना चाहता हूँ ठीक से समझ लो आप. Suppose your year ending is 31st March and you are given the dates of payment of interest as 30th June and 31st December, right? So यहाँ पे जो आपका सेकंड इंटरेस्ट का डेट आ रहा है वो आ रहा है 31st दिसंबर और आपका ईयर एंडिंग आ रहा है 31st मार्च. मतलब लास्ट इंटरेस्ट 31st दिसंबर को पे होगा, उसके बाद 31st मार्च तक, दैट इज टिल द एंड ऑफ द ईयर, देयर विल बी एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, राइट? तो यहाँ पे एक्रूअल का कंसेप्ट आएगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. और एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आता है तो एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर भी आएगा. इतना पक्का. या तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में आएगा या दोनों में भी नहीं आएगा, याद रखना. तो चेक what are the dates of payment of interest, check what is your year ending. Clear? Now further, now working notes. Now some people draw their ledger and simultaneously go on working. Some people पहले अपना पूरा वर्किंग नोट करके लेते हैं और फिर आपका लेजर में जाके वो लोग पोस्टिंग करते हैं. आइदर और, मैंने पहले ही बताया, जो मेथड से आप कर रहे हैं, जो मेथड में आप कंफर्टेबल है, वही मेथड से आपको अभी प्रैक्टिस करना है फॉर लास्ट 20 days. Is it clear? So that way you can solve the question on investment accounting. Investment accounting में और एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है about commission and brokerage. So far university questions are concerned, commission and brokerage नहीं पूछा जाता है. तो आपका investment accounting maximum is asking for your X interest or cum interest quotation, right? The second part in investment accounting is that of investment in shares. अगर investment in shares का full fledged 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो क्या होगा? Investment accounting shares is big conceptual as compared to investment in bonds. तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो there is standardization of the question. If you want to note down, you can note down. इसमें तो सबसे पहले ये बात है कि सिंप्लीफिकेशन ये है कि इसमें आपका जैसे डिबेंचर्स में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, तो शेयर्स में प्रैक्टिकली देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड. हाँ, थियोरेटिकली इट इज देयर, लेट इट बी, बट सो फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर कंसर्न, यहाँ पे आपका कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड कंसेप्ट नहीं आएगा. ओके, वन. सो व्हाट विल हैव देयर इन केस ऑफ क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स. सो फुल लेंथ 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स. नंबर 2, देयर विल बी सम परचेसेस फ्रॉम ओपन मार्केट. नंबर 3, देयर विल बी बोनस शेयर्स and simultaneously आपका there will be right issue. Even in right issue you'll have to check to what extent it has been
exercised, and then there will be dividend, and then there will be sale. Okay, now let us go one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक में स्पेसिफिकली आपको नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, उनका कॉस्ट दिया रहेगा. देन परचेस फ्रॉम मार्केट, अगेन स्पेसिफिकली आपको दिया रहेगा व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस एंड देन व्हाट इज द कॉस्ट. करेक्ट. तो ये आपका होल्डिंग हो गया. बेस्ड अपॉन दिस होल्डिंग देयर विल बी इशू ऑफ बोनस शेयर्स, वो आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, यू आर गिवन सम रेशियो, लेट अस से 5:2. to check out what is your holding, let us say that you are holding 15,000 shares, तो 5:2 के रेशियो में है. 15,000 के सामने आपको बोनस मिल जाएगा आपका 6,000 shares. You have to enter that 6,000 shares in the number of shares column without any cost, since it is a bonus shares. After that there will be issue of right shares. Now again in right shares there will be ratio given, in what ratio the right shares are being offered to the existing shareholders. So I quoted the example के before bonus आपके पास 18,000 shares, 15,000 shares है, sorry. So in the ratio of 5:2, 15,000 के सामने आपको बोनस मिलेगा 6,000, आपका टोटल होल्डिंग जाएगा 21,000. नाउ जब राइट शेयर्स का इशू आएगा उसके साथ आपका एक रेशियो आएगा. लेट अस से दैट यू आर गिवन द रेशियो ऑफ 7:3, मतलब जिसके पास 7 शेयर है ही कैन अप्लाई फॉर 3 शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो पहले आप ये कैलकुलेट करो कि how many shares you can apply for in under the right issue, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं एंटाइटलमेंट और राइट्स. आपका कितना राइट्स है वो पहले कैलकुलेट कर लो. तो 7:3 मतलब 21,000 के सामने कितना आएगा आपका? 7 शेयर के बदले में 3 शेयर, तो 21,000 शेयर के बदले में कितना शेयर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका 9,000 शेयर्स आएगा. So these are the 9,000 shares you can maximum apply for. Then check out कि out of these 9,000 how many shares are actually purchased by the investor. तो शायद क्वेश्चन में दिया रहेगा that out of that 60,000 he has exercised. क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरह का रहेगा that the investor whosoever is XYZ he exercised option to the extent of 60% and sold the remaining rights for rupees so and so. ऐसा कुछ भी दिया रहेगा आपको. तो अभी आपका एंटाइटलमेंट हमने कैलकुलेट किया, that comes to 9,000 shares. तो 9,000 में से आपने 60% अगर एक्सरसाइज किया है तो 9,000 का 60% मतलब यू हैव परचेस ओनली 5,400 शेयर्स. तो आपका एंट्री आएगा फॉर परचेस ऑफ 5,400 शेयर्स. रहा सवाल बचा हुआ एंटाइटलमेंट दैट इज ऑफ 3,600 शेयर्स, दैट इज 9,000 माइनस 5,400. तो 3,600 का जो आपका एक्सरसाइज एंटाइटलमेंट रहेगा जो आपने बेच दिया, उसका एंट्री डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है आपको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका एंट्री दिखाओ. अगर आप पैनल अकाउंट नहीं बनाने वाले तो ये जस्ट यू हैव टू राइट अ नोट दैट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एंटाइटलमेंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, देन कम्स द कांसेप्ट ऑफ योर डिविडेंड. ना यहाँ पे सबसे पहले कांसेप्ट ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि डिविडेंड कितने शेयर्स के ऊपर मिलेगा. बराबर. प्लीज रिमेंबर आपका जो डिविडेंड है जो आपको करंट ईयर में मिल रहा है वो आपका करंट ईयर का डिविडेंड होता ही नहीं, वो हमेशा आपका प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता है, लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है. तो आपका लास्ट ईयर का होल्डिंग कितना था? लास्ट ईयर का होल्डिंग मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस. बराबर. तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस में शेयर जो दिया है वो ओपनिंग बैलेंस का जो आपका शेयर्स का डिविडेंड आएगा दैट विल बी ओनली ट्रीटेड एज योर इनकम. ओके, वो आपका जाएगा डिविडेंड कॉलम में. उसके अलावा जो आपने मार्केट से शेयर्स परचेस किए होंगे उसको भी अगर आप उसके ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड वी कॉल इट एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड. शेयर्स परचेस करने के पहले के पीरियड का डिविडेंड हमको मिला, दैट इज कॉल्ड प्री एक्विजिशन डिविडेंड. करेक्ट. ये डिविडेंड आपका प्री एक्विजिशन मतलब ये आपका कैपिटल प्रॉफिट के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है, इसलिए इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्लियर है. अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब सवाल ये उठता है कि ये जो आप अभी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है. ओके, तो एग्जांपल के तौर पे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आपके पास ओरिजिनली 10,000 शेयर्स थे साल के शुरुआत में, फिर आपने मार्केट से 5,000 परचेस किए, टोटल 15,000 हो गया. फिर आपको 6,000 शेयर्स का बोनस मिला, आपके पास टोटल 21,000 शेयर्स हो गए. फिर उसमें से आपने 5,400 शेयर्स को बेच दिया, सॉरी फिर आपने अंडर राइट इशू 5,400 शेयर्स परचेस किया.
तो 21,000 प्लस 5,400 आपका टोटल होल्डिंग हो गया 26,400 शेयर्स, बराबर। नाउ फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस 26,500 शेयर्स। इसका कॉस्ट आएगा 10,000 का कॉस्ट प्लस 5,000 का कॉस्ट, बराबर है, प्लस 0 फॉर बोनस शेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स लेस वो जो 5,000 शेयर्स अभी आपने मार्केट से परचेस किए उसका जो आपको डिविडेंड मिल रहा है प्री एक्विजिशन डिविडेंड वो आपके कॉस्ट में से आपको लेस करना है। दिस बिकम्स द नेट कॉस्ट ऑफ योर 26,400 शेयर्स, राइट। एंड देन चेक उसमें से आपने कितना बेचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काउंट द कॉस्ट ऑफ दैट number of shares sold and then find out what is your profit or loss. Is it clear? This is all about the investment accounting. Students, you are free to ask any doubt you are having on investment account. Please. Any of you. You can unmute yourself and ask the doubt. So we can have the question answer session at the end of the session. Is it okay or chapter wise? Then I don't have any problem. My idea was जैसे चैप्टर मेरा एक्सप्लेन हो जाता है so immediately अगर होता है तो chapter wise you can go for, or if students want we can keep it at the end of the session. Sir, as the comfort level of the students. Actually, students are posting the questions to me, and I'll be asking the question on behalf of students. Okay, no problem. Sir, as you told previously that there will be ledger-based questions asked in investment accounting. So, if they need the journals completely, will it be okay, or are there any chances for the ledger also, for the journal entries also? No, journal will not be asked at all. Sure. Okay. So they have to completely focus on the journal entries. Ledger only. Ledger accounting. Ledger of investment. See what happens, madam, many times students are not comfortable in preparing directly ledger. So what they do, they do first journal and then they go on posting. Okay. Yes. I think preparing that journal, there will be no marks result for preparation of journal. So in fact, that will be actually wastage of time. So if students can directly go for ledger, it will be better for them. So that much time will be saved. And students should also take care of writing the journal entries, because if they don't write the amount or they do any mistake in the double entry, then also they will get the 0 mark. Because if they leave anything in completion of a particular journal entry, they will lose the entire mark. So they have to take care of it also. Yeah. So see, in a particular chapter, there are 10 journal entries to be written. Okay, and students have attempted 8 correctly with debit and credit and amount also. So they will get marks for those 8 entries only. The remaining 2 entries, if they are mistaken, if they are given wrong figures or if they are not written any figure, then they are losing marks for those 2 entries only. Yes. Along with the narration. Narration is a formality, madam. Frankly. Okay. They have to write the narration. Mention. They have to mention. Okay. Sure. Yeah. Thank you, sir. We can continue. Okay. You can continue. Okay. So the next chapter for you will be buyback of shares. Correct. Now, buyback of shares, there are 3 types of questions, if you have already seen. First type, where you are given how many number of shares the company is going for buyback, and also the price settled. At what price the shares will be buyback. So this is the first type of question. I think this is the most simple question. Of course, buyback, there will be, of course, journal entries only. Okay. As in case of investment accounting, I specified, you have to concentrate only on ledger. No need of preparing any journal in case of investment. But in case of buyback, definitely there is going to be only journal. Okay. So for your buyback is concerned, first type I told that in the question you are given, company कितना shares buyback करेगी और क्या price से buyback करेगी. तो यहाँ पे किसी working note का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा. Second type, जहाँ पे आपको buyback कितना करना है, that will be asked in the question, that you have to decide, you have to work out कि maximum कितना buyback हो सकता है. Okay. And but in this question you are given the price, at what price ये buyback किया जाएगा, that is given there. And then number 3 कि जहाँ पे ना number of shares आपको दिया है और ना price आपको दिया है. Number of shares आप decide करो और price भी आप ही decide करो. तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं in case of so far buyback is concerned. Okay. फर्स्ट टाइप जो मैंने बताया आपको कि जहाँ पे आपका नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया है और प्राइस भी दिया है,
ये टाइप का क्वेश्चन आपका 10 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि इसमें वर्किंग नोट नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट टू टाइप है जहाँ पे आपको प्राइस दिया है लेकिन शेयर्स नहीं दिया है, एंड देन प्राइस भी नहीं दिया और नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया। ये दोनों टाइप में आपको वर्किंग नोट करना पड़ता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नॉर्मली आपका 20 मार्क्स तक का आ सकता है। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो नंबर 1 वर्किंग नोट भी है, नंबर 2 जर्नल भी है, एंड नंबर 3 या तो आपको बैलेंस शीट पूछ सकते हैं या फिर नोट्स टू अकाउंट्स। अगर नोट्स टू अकाउंट्स पूछेंगे तो इसमें स्पेशली शेयर कैपिटल एंड आपका रिजर्व सरप्लस, ये दो नोट्स नॉर्मली आपको पूछा जाता है। तो दैट वे यू शुड हैव योर प्रिपरेशन। करेक्ट। नाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी क्वेश्चन, सर हुआ तो क्या होगा? फ्रैंकली सेइंग, अगर इंटरेस्ट आपका ऊपर नीचे होता भी है तो उसका टेंशन मत लो आप, क्योंकि बायबैक के किसी भी क्वेश्चन में यू आर नॉट मेंशनिंग द डेट्स, बराबर है। तो जब आपने डेट मेंशन नहीं किया हुआ है तो एंट्रीज ऊपर नीचे अगर होता भी है तो कोई आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, तो वो कॉन्फिडेंस आप अपने पास रखो। लेकिन फिर भी अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो परफेक्शन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, इफ आई एम परमिटेड टू। हाँ मैडम, चलेगा ना? Yes, sir. हाँ, ओके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ विच इज कंसर्न विथ योर फैमिली। तो ऐसा एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जिसमें मैं सभी पॉइंट्स को कवर करने का कोशिश करूंगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो एक्चुअली मैं क्लासरूम में जब टीच करता हूँ ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज, उस वक्त मैं ये एग्जांपल कोट करता हूँ। सपोज के आपका एक बड़ा भाई है और वो बड़े बड़े भाई की हमको शादी करानी है, बराबर है। अब अगर शादी करानी है तो शादी के लिए एक लड़की चाहिए, बराबर है। मॉडर्न एज है, ओके। आपके भाई ने एक लड़की को ऑलरेडी देख के रखा है, उनका ऑलरेडी सेटिंग हो चुका है, ओके। तो अगर आपके घर वाले परमिशन दे रहे तो डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद द शादी का प्रोसेस, बराबर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके भाई के लिए लड़की ढूंढने से हमको शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट चेक वेदर शेयर्स आर फुल्ली पेड और शेयर्स आर पार्टली पेड, बराबर है। क्योंकि बायबैक के लिए आपका फर्स्ट कंडीशन है दैट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि आपके भाई ने ऑलरेडी एक लड़की देख के रखी, शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ मैरिज, ओके। लेकिन अगर भाई ने कोई लड़की नहीं देखी है, मतलब शेयर्स आर पार्टली पेड अप, आपको लड़की ढूंढने से शुरू करना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर फाइनल कॉल ऑन शेयर्स, और फाइनल कॉल के बाद ही यू कैन गो फॉर बायबैक। करेक्ट। तो फर्स्ट चेक वेदर शेयर्स आर फुल्ली पेड और पार्टली पेड। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, शादी ब्याह की बात है तो हमको चाहिए सबसे पहले पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आपका या तो फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या कभी कभी क्वेश्चन में डिबेंचर्स भी दिया रहता है, ओके। या फिर देयर विल बी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट, अभी पैसा भी हो गया। नाउ आपका 4 स्टेप में शादी हो जाता है, बराबर है। नाउ कोई भी आप शादी अटेंड कर रहे हैं तो जैसे कि दूल्हा दुल्हन आके खड़ा होता है, बीच में एक कर्टेन डाला जाता है, फिर वो पंडित आके मंत्र डालते हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर चावल डालते हैं, हो गया शादी। करेक्ट। तो 4 स्टेप में शादी कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप आपका बायबैक ड्यू का एंट्री, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, जो आपका प्रीमियम आप पे करे हो प्रीमियम को एडजस्ट करो, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने एडजस्ट करो या जनरल रिजर्व के सामने एडजस्ट करो या पैनल, जो भी वॉट एवर इट इज अवेलेबल वो हिसाब से। उसके बाद आप अपना क्रिएट सीआरआर करो, बराबर है। एंड लास्ट उनका इक्विटी होल्डर्स का पेमेंट कर दो। करेक्ट। शादी के बाद में हमारे यहाँ कुछ रस्म होती है, जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोनस शेयर्स का एडजस्टमेंट दिया रहेगा। वो बोनस शेयर्स आपका आएगा आपका आपका एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो टोटल 4 स्टेप्स मैंने बताया। फर्स्ट स्टेप, चेक वेदर शेयर्स आर फुल्ली पेड और पार्टली पेड। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया या तो इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर शेयर्स और डिबेंचर्स या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर 4 स्टेप में आपका बायबैक और आखिरी में बोनस। तो ये ऑर्डर में अगर आपका एंट्री आ जाता है तो ये आपका पूरा परफेक्शन हो जाता है। इस तरीके से आप बायबैक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ बायबैक ऑफ शेयर्स में जो आप वर्किंग कर रहे हैं, अगेन वर्किंग में भी कुछ लोगों का अलग अलग मेथड से। नॉर्मली आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर रहे हैं, सी देयर आर टोटल 3 प्रोविजंस गिवन। फर्स्ट प्रोविजन इज दैट बायबैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल एंड सोर्सेस ऑफ बायबैक, करेक्ट। सेकंड है आपका बायबैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड थर्ड इज दैट आफ्टर बायबैक योर डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2, करेक्ट। ये तीन आपके पॉइंट्स आपके वर्किंग नोट में कवर होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप देखो आज तक जो भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, कितना बायबैक आपको करना है, ये आपको या तो नंबर 1 या नंबर 2 में मिलेगा। नंबर 3 इज अ फॉर्मेलिटी। कई बार नंबर 3 में आके क्वेश्चन पूछा जाता है कि देयर आर 2 टाइप्स। कुछ लोग डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके बोलते हैं कि यस इट इज लेस देन 2 सो गो फॉर बायबैक, या कुछ लोग क्या करते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड ओन कैपिटल कैलकुलेट करते एंड देन व्हाट इज योर ओन कैपिटल आफ्टर बायबैक, दोनों का कंपैरिजन करते एंड देन दे प्रूव दैट इट इज मोर देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड सो योर बायबैक इज ओके लाइक दैट। So third is only a checkup. Third provision will never specify कि आप कितना बायबैक कर सकते हैं. So third is only a checkup that your ratio is not exceeding 2. So आपका जो भी आंसर है वो 1 and 2 में आपका आ जाता है। क्लियर है? Now एक तो आपका वर्किंग नोट हो गया। नेक्स्ट जनरल एंट्रीज मैंने आपको सब बताया। नाउ थर्ड में आने के बाद थर्ड पार्ट इज दैट या तो आपको बैलेंस शीट पूछा जाता है या फिर आपको नोट्स पूछा जाता है। अगर बैलेंस शीट पूछे तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा, बराबर है। अगर बैलेंस शीट पूछते हैं तो एक डिस्काउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं कि देखो फाइनल अकाउंट का आप क्वेश्चन हम लोग अगर कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट में जितना भी आइटम है हर एक आइटम के लिए हमको नोट्स बनाना पड़ता है। बट द अदर 2 चैप्टर दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स एंड देन इसके बाद में जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपका करवाने वाला हो, दोनों में एक डिस्काउंट आपको दे सकते हैं कि अगर कुछ आइटम्स ऐसे जो सिंगल आइटम्स है जैसे कि डिबेंचर्स आर गिवन, okay. Now in the given balance sheet there are debentures say rupees 5 lakhs, okay, and there is only borrowed capital, okay, and so far buyback is concerned, buyback में किधर भी debentures के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, तो डिबेंचर में कहूंगा अभी सिंगल आइटम हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर हेड दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके। तो उसके लिए आपको नोट बनाने का जरूरत नहीं। आपका नोट कहाँ पे आएगा? नंबर 1 आपका नोट आएगा शेयर कैपिटल, नंबर 2 आपका नोट आएगा रिजर्व सरप्लस, क्योंकि ये दो के ऊपर तो इफेक्ट होना ही होना है, करेक्ट। थर्ड इफेक्ट आपका कहाँ पे आ सकता है? थर्ड इफेक्ट आपका आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर, करेक्ट। एंड फोर्थ इफेक्ट अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आएगा। तो जो आइटम्स चेंज होने वाले खाली उतने आइटम्स का आपने नोट बनाया तो भी चलेगा, हर एक का फिर से पूरा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं। मैं बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर। जो सिंगल आइटम से स्पेशली जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, अभी क्लोजिंग स्टॉक में तो कोई चेंज आने वाला नहीं बायबैक में, तो एज इट इज स्टॉक को आप लिख दो। इज इट क्लियर? उसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं। तो नोट आपका कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, कैश इक्विवेलेंट एंड अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट्स। बराबर, ये 4 के ऊपर जहाँ पे इफेक्ट आ रहा है उधर ही खाली आप नोट बना के दे तो बाकी फिगर्स आपने कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? दूसरी बात, अब जब आप पर्टिकुलर नोट बनाते हैं स्पेशली इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड बायबैक ऑफ शेयर्स, यू हैव टू पे कंसंट्रेशन कि आपको दिया हुआ अमाउंट्स क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू आर गिवन से 50,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 80 paid up. I repeat, 50,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 80 paid up. ये आपको क्वेश्चन में दिया है एंड एडजस्टमेंट के हिसाब से चलते हैं हम लोग, तो उसमें से 10,000 बायबैक हुआ है और उसके बाद 5,000 का आपने बोनस दिया है। I repeat, originally there are 50,000 shares of rupees 10 each, rupees 8 paid up, and then there is buyback of 10,000 shares, and then there is bonus issue of 5,000 shares. Clear? Now, when you are preparing the balance sheet, तो एक सीक्वेंस में आके आपको चेक करना है कि what is the end result और end figures of that particular item. तो थोड़ा सा कंसिडरेशन वाला बात है, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है कि पहले मेरे पास 50,000 शेयर्स था ऑफ रुपीज 10 each, रुपीज 8 पेड अप। तो सिंस इट इज पार्टली पेड शेयर्स, डेफिनेटली मैंने पहले तो 2 रुपया कॉल किया होगा, तो मेरा शेयर्स बनेगा 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली पेड। आउट ऑफ दैट 50,000 मैंने 10,000 शेयर्स बायबैक किया। जैसे मैं बायबैक करता हूँ मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गया, बराबर है। तो 50 का बन गया 40
एंड देन उसके बाद मैंने बोनस दिया, बोनस से मेरा शेयर कैपिटल वापस बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5000 शेयर, सो इट इज 40 + 5 दैट कम्स टू 45000, सो इट इज 45000 शेयर्स of rupees 10 each fully paid up, that becomes your share capital. Same way when you go to reserves, तो आपका रिजर्व्स पहले क्या था, उसमें से किस तरह से यूटिलाइज हुआ है, क्या बचा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। जैसे क्वेश्चन में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है से ₹1 लाख, ओके, एंड ऑन बाय बैक यू हैव पेड प्रीमियम ऑफ ₹1,20,000, just for an example I'm saying. So already given in the balance sheet, securities premium ₹1 lakh, and then you are paying on buyback premium of ₹1,20,000. इसका सिंपल मतलब ये होता है that 1,20,000 जब हमको एडजस्ट करना है तो 1 लाख प्रीमियम ऑलरेडी हमने वहां पे यूज किया होगा, राइट। इनफैक्ट 20,000 कम पड़ा रहेगा, वो शायद हमने जनरल रिजर्व या पैनल अकाउंट में से उठाया रहेगा, बराबर है। सो कहने का मतलब ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में दिया है वो पूरा के पूरा यूज हो गया हमारा। Now what is balance in security premium is zero, correct? Many times we have seen that zero भी है तो भी बच्चे वापस उसमें एग्जाम में लिख के आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख लेस यूज फॉर बायबैक ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स 1 लाख आउट ऑफ कॉलम जीरो। सॉरी, कोई अकाउंट अगर क्लोज हुआ है तो उसको फिर से बैलेंस शीट में लिखने का जरूरत नहीं, सेव योर टाइम, क्योंकि उसका वैल्यू जीरो है, वो आइटम का एग्जाम में मार्क्स रहेगा जीरो, सिंपल वे। सो डोंट राइट ऑल सच थिंग्स कि जहाँ पे आपका बैलेंस जीरो आ रहा है, क्लियर है। हाँ, बाकी जनरल रिजर्व है जिसमें ओरिजिनली 5 लाख से उसमें से आपका 4 लाख यूटिलाइज हो गया है, सो 1 लाख बैलेंस बच गया आपके पास, यस जनरल रिजर्व को आने दो, क्योंकि जनरल रिजर्व में बैलेंस बच रहा है आपका 1 लाख, बराबर है। और प्लीज रिमेंबर जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे स्पेशली रिजर्व सरप्लस के बायबैक में आपका नॉर्मली सीआरआर क्रिएट होता ही है, ओके। बोनस में चेक करो, अगर बोनस दिया है तो बोनस में कितना सीआरआर यूज हुआ है, एंड देन बैलेंस बचा हुआ सीआरआर आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए। इज इट क्लियर? सो दैट इज अबाउट योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सॉरी बायबैक ऑफ शेयर्स। प्लीज मैडम, बच्चों का कुछ डाउट्स होगा तो यू कैन डिस्कस। नो सर, नॉट एज सच, बिकॉज ये थोड़ा उनको सिंपल लगता है ये चैप्टर, तो ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। थैंक यू, बोलिए। In बच्चों को fact, कुछ डाउट्स होगा तो बोलो। in fact, this chapter is quite scoring because we also end up giving full marks to most of the students. Yes, तो yes. ये in fact Yes, yes, ma'am. ये उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि इसमें उनको Yeah, yeah. full 20 मार्क्स स्कोर करने का चांसेस है। Of course, ma'am. Of course, ma'am. So as वो you variety told में कि आपके स्टार्टिंग में आपने कहा कि आपको आपके चैप्टर सीक्वेंस में अरेंज करने हाँ. चाहिए, which you find easier should prepare first. Yes. So I think First, this correct, should be the very correct. first chapter in semester 5 where they can score Yeah, maximum or either full marks. Yeah, correct, ma'am. Correct, ma'am. In fact, ma'am, एक चीज मैं बोलना भूल गया है. This is financial accounting textbook application, and her name is mine. So I am co-author for this particular book. So when we are preparing from students' point of view only. In fact, we don't have the time right now. Otherwise, when I'm teaching the previous chapter, investment accounting, I have invented my separate method for preparation of working notes. So normally, we find that even in books, we are having at least 8 to 10 working notes in each chapter. But when I'm teaching in the class, I'm giving only 2 working notes. And once my working notes are over, I challenge the students that आपका question paper भी रख दो बाजू में. There is no need of even question to me now. मेरा working note को copy paste कर दो, आपका आंसर हो जाएगा. So actually simplification है, लेकिन what happens unfortunately मैडम कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम सुन के बच्चे पहले दिमाग में उनका बैठा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। सो एक्चुअली एज अ ब्लैंक स्लेट, तो हमारा काम एक्चुअली आसान हो जाता है, लेकिन पहले से अगर उनको डरा के रखा है कि बहुत डिफिकल्ट है, आपसे होगा ही नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लाइक से फाइनल अकाउंट, आई ऑलवेज से दैट 4 चैप्टर में सबसे सिंपल आप मुझे पूछेंगे क्या है, तो मैं कहूंगा फाइनल अकाउंट सबसे सिंपल, बिकॉज 11 से लेकर एसवाई तक आप फाइनल अकाउंट कर चुके हैं, बराबर है। वहां पे जो आपने एडजस्टमेंट पढ़ा है वही एडजस्टमेंट आपका बार बार आपके सामने आ रहा है, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलो, इफेक्ट तो वही है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट अभी हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हुआ है, वर्टिकल, करेक्ट। तो हाँ, वर्टिकल फॉर्म में हम लोग आ रहे हैं, और वर्टिकल में भी हमारा स्पेसिफिक हेडिंग्स है, राइट। तो हेडिंग्स के हिसाब से हमको चलना है, तो दैट मेक्स योर फाइनल अकाउंट सॉल्यूशन अ बिट लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट।
दैट मे बी सर, क्योंकि वो लोग ने लास्ट FY JC से लेकर के अभी लास्ट 4 years में उन्होंने हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, तो अभी जो Exactly. वर्टिकल अरेंजमेंट ऑल ऑफ अ सडन TY में है, तो Exactly. मे बी दे आर नॉट एबल टू कोप अप, क्योंकि ये Exactly. उनको एकदम नया चैप्टर लगता है और थोड़ा करेक्ट, टाइम कंस्ट्रेंट भी आ जाता है कंप्लीट करने में। बराबर है। बट मैडम फाइनल अकाउंट को उनको ऑप्शन नहीं, बिकॉज इंटरनल में भी उनको बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछ सकते हैं, बायबैक में भी बैलेंस शीट आ सकता है। यस, तो किसी ने अगर फाइनल अकाउंट अगर ऑप्शन में डाला है, तो अभी भी टाइम है आपके पास, एटलीस्ट बैलेंस शीट तो करो बाकी 2 चैप्टर्स के लिए, नॉट फॉर फाइनल अकाउंट। और मे बी वी थिंक कि कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में, एक सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ 20 मार्क्स के लिए, हो चुका है इसके पहले यूनिवर्सिटी में। अगर वो टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर यू कैन अटेम्प्ट दैट वेरी इजीली। लेकिन अगर पहले से मैंने दिमाग में डाल के रखा है कि नहीं ये मेरे से होगा ही नहीं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस, ये प्रॉब्लम है। ओके सर, तो इसमें कुछ डाउट है बच्चों को? तो नो नो, बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट वन, यस नोट नोट, ओके मैम। So, dear students, let's go for the next chapter, which is internal reconstruction. Now, about internal reconstruction, again, there may be journal entries plus preparation of capital reduction account. Yeah, sometimes there is only preparation of capital reduction account. So, either way, you have to prepare. Clear? Now, when you are attempting a question of internal reconstruction, okay, again, अभी भी जैसे मैंने मैडम से बात करा था, मैं बताया आपको कि बैलेंस शीट आपको सीखना ही है, फिर आप वो फाइनल अकाउंट में सीखो, उसको आपको यूज करना है इंटरनल में, उसको यूज करना है आपको बायबैक में। तो हो सकता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देयर में भी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑल्सो। तो अभी जैसे मैंने आपको बायबैक में बताया कि जो अनचेंज्ड आइटम्स है उनको आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिखा तो भी चलेगा, उसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। जो आइटम्स अनअफेक्टेड है उनको एज इट इज लिख दो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, internal reconstruction, when we are checking the papers, what we find that many times that uh, adjustments are not properly interpreted by the students and that makes mistake. तो इसमें 2 टाइप्स है, वो आपको दोनों टाइप्स क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, you are given in the balance sheet machinery rupees 10 lakhs, okay, and then the adjustment is given that machinery is reduced to rupees 4 lakhs. Please pay concentration थोड़ा सा। In balance sheet, you are given machinery rupees 10 lakhs, rupees 10 lakhs. Adjustment is given that machinery is reduced to rupees 4 lakhs. Now ये लैंग्वेज थोड़ा समझ लो कि reduce to का मतलब 10 लाख जो आपको ओरिजिनल वैल्यू दिया है, that 10 lakhs is brought down to rupees 4 lakhs, मतलब you have to write off 6 lakhs. दूसरा एडजस्टमेंट ये आता है, बिल्डिंग यू आर गिवन 20 lakhs और एडजस्टमेंट आपको दिया है बिल्डिंग इज रिड्यूस्ड बाय रुपीज 2 lakhs. So by rupees 2 lakhs मतलब exactly 2 लाख आपको कम करना है. So building is 20 lakhs reduced by 2 lakhs, so building remains 18 lakhs. तो आपका कैपिटल रिडक्शन में जाएगा ओनली रुपीज 2 lakhs, बराबर है. लेकिन वही मशीनरी के बारे में क्या बोला है, मशीनरी इन गिवन बैलेंस शीट 10 lakhs एंड देन एडजस्टमेंट बोला इट इज रिड्यूस टू रुपीज 4 lakhs. तो 10 लाख को नीचे लेके आओ 2 रुपीज 4 lakhs, मतलब आपका मशीनरी रिड्यूस कितना होगा 6 lakhs. तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा आपका 6 lakhs. तो वेदर इट इज टू और वेदर इट इज बाय, इसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है. यहाँ पे आपका बच्चे लोग मार्क्स मिस आउट कर लेते. ओके, सो 1 पॉइंट. सेकंड पॉइंट अबाउट शेयर कैपिटल. नाउ देयर यू ऑल लर्न 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज. एक जहाँ पे आपका सिर्फ फेस वैल्यू सॉरी पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है, फेस वैल्यू इज रिमेनिंग एज इट इज. एंड सेकंड टाइप की जहाँ पे आपका फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों भी रिड्यूस हो रहा है, बराबर है. कई बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा टाइप का एंट्री करना है, क्या फेस वैल्यू चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो पहले एक रूल समझ के चलो. सो फॉर योर इक्विटी शेयर कैपिटल इज कंसर्न, अगर फेस वैल्यू चेंज होता है, आपका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल अकाउंट आपको पूरा क्लोज करके नया शेयर कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना. नंबर 2 अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स. अगर फेस वैल्यू चेंज होता है तो जो मैंने इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया वही प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताऊंगा. अगर फेस वैल्यू चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, नया जो भी आपका फेस वैल्यू रहेगा वो नया फेस वैल्यू का नया कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में और एक बात है, अगर रेट ऑफ डिविडेंड भी चेंज होता है तो भी आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट क्लोज करके नया कैपिटल अकाउंट ओपन करना, बराबर. फॉर एग्जाम्पल, you are given that it is 8% preference shares, it is 5 lakhs.
I repeat, 8% preference shares of rupees 100 each 5 lakhs. Okay. Now the adjustment is given that preference dividend was in arrears for last 4 years. I repeat my example. 8% preference shares of rupees 100 each, rupees 5 lakhs. And adjustment is given कि आपका preference dividend पिछले 4 साल से arrears में. Then, okay. Now, आगे बोला गया है एडजस्टमेंट में that preference shareholders waive the arrears of dividend and in consideration thereof their rate of dividend was enhanced to 10%. मतलब क्या होगा कि उनका जो डिविडेंड के एरियर्स है वो लोग छोड़ने के लिए तैयार है, वेव कर रहे हैं वो, और उसके बदले में बोलते हैं कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 8% का 10% का, बस, बाकी कुछ नहीं. Now, first of all, जो arrears of dividend है, we call it as contingent liability. I repeat, arrears of dividend is a contingent liability, and contingent liability waived. For that, there is no general rule because it is unrecorded liability. तो जब liability आपका unrecorded है, तो liability आपका reduction कितना है? 0 ही होगा. 0 liability का reduction हो ही नहीं सकता, बराबर है? तो unrecorded liability waived, there is no entry. 1. Number 2. अब आपका rate of dividend जो preference shares का पहला 8% था उसका 10% हो गया. Now, though there is no change in the face value, still since the rate of dividend is changing, first what you have to do, you have to close the rate of dividend 8% वाला आपका preference share capital and open new 10% वाला preference share capital. तो आपका simple entry आएगा 8% preference share capital account debit to 10% preference share capital rupees 5 lakh. That's all. Nothing is going to capital reduction. कहने का मतलब ये था कि अगर आपका रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होता है तो आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट क्लोज करके नया कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना. क्लियर? नाउ कमिंग टू इक्विटी शेयर्स. सो कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज क्योंकि कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ध्यान नहीं रहता है कि फेस वैल्यू चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है. तो क्वेश्चन रीड करके या एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें आपका फेस वैल्यू चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल, यू आर गिवन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid. Whatever amount is there. Okay. Now adjustment is given. The shares to be reduced to ₹2 each fully paid. I repeat, equity shares to be reduced to ₹2 each fully paid. Now, what do you mean by the words fully paid? Fully paid का मतलब होता है that your face value and paid value both are one and the same. Fully paid का मतलब होता है face value and paid value both are one and the same. Correct? Now, ओरिजिनल था आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid. मतलब क्या था कि पहले आपका फेस वैल्यू 10 रुपया था और पेड वैल्यू भी 10 रुपया था, बराबर है? अब एडजस्टमेंट बोला है दैट इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹2 each fully paid. मतलब क्या होगा कि नया आपका पेड वैल्यू रहेगा 2 रुपया, लेकिन जो 2 रुपया पेड रहेगा वो फुल्ली पेड होगा. अब 2 रुपया फुल्ली पेड हो गया मतलब फेस वैल्यू भी 2 रुपया हो गया ना. आई होप यू अंडरस्टैंड, बराबर है? सो आपका फेस वैल्यू 10 रुपए का 2 रुपया होगा, पेड वैल्यू भी आपका 10 रुपए का 2 रुपया होगा. तो यहाँ पे फेस वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, फेस वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, 10 रुपया वाला अकाउंट क्लोज करो, 2 रुपया वाला नया अकाउंट ओपन करो, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा 8 रुपया पर शेयर, दैट विल गो टू योर कैपिटल रिडक्शन. बराबर है? तो ये आपको इक्विटी के लिए एप्लीकेबल करना है, ये आपको प्रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल करना है. रिगार्डिंग अदर लायबिलिटी जितना वेव हुआ रहेगा उतना वेव पार्ट आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है. एसेट्स का जो रिवैल्यूएशन आपको दिया है वो रिवैल्यूएशन चेक करो, टू दिया है या बाय दिया है. बराबर? अगर बाय दिया है मतलब उतने अमाउंट से कम करो. बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹2 लाख, तो 2 लाख बिल्डिंग का कम करो तो कैपिटल में आपका 2 लाख आएगा. लेकिन वही अगर 2 बोला है तो आपको डिफरेंस 2 मतलब रिवैल्यूएशन दिया. अदर वर्ड्स में ये बोलो कि मशीनरी जो था आपका 10 लाख, बराबर है, इट इज ब्रॉट डाउन टू ₹4 लाख बोलो या इट इज रिवैल्यूड एट ₹4 लाख बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है. तो बिल्डिंग का वैल्यू आपका 6 लाख रुपया कम हो जाएगा, तो बिल्डिंग का 6 लाख विल गो टू कैपिटल रिडक्शन. आई बात समझ में? ओके. नाउ व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब आपको बैलेंस शीट दिया है सबसे पहले आपने क्या करना है, एसेट साइड में जाके नोट करो कि आपका फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सा है. बराबर? एक तो कॉमनली आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है. इसके अलावा आपका हो सकता है अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, देयर मे बी some deferred expenses like heavy advertisement expenses, there may be R&D expenses like that. So please remember,
whether the question specify or question doesn't specify. ओके, ये सभी फिक्टिशियस एसेट्स को आपको कंपल्सरीली राइट ऑफ करना है, एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो भी. ओके, देन so what happens in case of internal reconstruction? Whatever sacrifice is being made by equity shareholders, preference holders, debentures or creditors, that is transferred to capital reduction account, and whatever losses are to be written off are written off from the capital reduction account, and at the end of the process of internal reconstruction, that balance in capital reduction account is to be transferred to capital reserve account. बराबर है? So before you transfer this balance in capital reduction account to capital reserve account, check that all the fictitious assets are written off. One. Number two, fictitious assets आपका राइट होने के बाद भी अगर आपके कैपिटल में कुछ बैलेंस थे तो चेक करो बैलेंस शीट में गुडविल है. बराबर है? अगर आपके दिए हुए बैलेंस शीट में गुडविल है तो गुडविल को भी जितना पॉसिबल है उतना राइट ऑफ करोगे, बिकॉज द बेसिक रीजन इज दैट गुडविल इज ए कैपिटल लॉस. तो गुडविल को भी हमको राइट ऑफ करना है. बराबर है? तो fictitious assets राइट ऑफ हो गया, गुडविल भी राइट ऑफ हो गया, इसके बावजूद आपके पास बैलेंस बचा है. हाँ, नाउ उठा के उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें. इज इट क्लियर? दैट इज अबाउट योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. नाउ इसमें आपको कुछ भी डाउट्स है, प्लीज यू कैन गो फॉर. हाँ, अनदर थिंग, सॉरी आई फॉरगॉट, अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं भी बोला है तो भी कंपल्सरीली आपको बनाना है, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कि आपके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना है. बराबर है? सो कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर इट, नहीं बोला है प्रिपेयर इट, एज ए वर्किंग नोट उसको दिखाओ, लेकिन बनाना तो पड़ेगा यार, to find out the closing balance of capital reduction. Okay, now you can go for your questions if you are posted. So students are mainly asking for the time management. Students okay, are, I'm coming to that. After the final account, I will come back to it. Okay. So Chalega? as said, there are Yeah. no questions for external internal Okay. reconstruction. Chalega. So I will cover now final account and then I will talk about that time management. जी. Okay, but time management will require some practice. उनको हर एक चैप्टर का कम से कम 2 क्वेश्चंस अगर करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट फिर उनको समझ में आ जाएगा क्या है. ओके, आई एम गोइंग फॉर फाइनल अकाउंट्स नाउ. ओके, नाउ फाइनल अकाउंट्स बेसिकली अगेन 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. नंबर 1, प्रिपेयर ओनली बैलेंस शीट. नंबर 2, प्रिपेयर ओनली P&L अकाउंट. एंड नंबर 3, प्रिपेयर P&L अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट. तो सॉरी, सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो रहेगा वो प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट. उसका कारण 2 है. एक तो आपका सॉल्यूशन का लेंथ बढ़ जाता है क्योंकि आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, आपको P&L अकाउंट भी बनाना है, उतना सारा नोट्स बनाना है, और उससे भी डेंजर ये रहेगा कि आपका एडजस्टमेंट्स. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है फाइनल अकाउंट में, आपको बोलता हूँ कि 11वीं से लेकर इस वक्त तक व्हाट योर फाइनल अकाउंट्स वी हैव डन, तो हमारा मेथड क्या था. हमारा एक तो हॉरिजॉन्टल था, कंफर्ट लेवल था हमारा. नंबर 2, उसमें कोई ऑर्डर नहीं था. बराबर है? एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें गुडविल सबसे ऊपर लिखा, दूसरे क्वेश्चन में गुडविल बीच में किधर तो भी लिखा, थर्ड क्वेश्चन में गुडविल नीचे किधर तो भी लिखा. ट्रायल बैलेंस में जो ऑर्डर में आइटम मिला वो ऑर्डर में लिख दिया हमने. बट ऐसा अभी नहीं चलेगा. बराबर है? क्योंकि एक तो हमको नोट्स के फॉर्म में उसको बनाना है, कौन से नोट में कौन सा आइटम आएगा वो हमको जानना है, उसमें भी उनका ऑर्डर क्या है. जैसे कि अगर मैं इन्वेंटरीज बना रहा हूँ तो इन्वेंटरी में सबसे पहले आना चाहिए लूज टूल्स, उसके बाद मेरा स्टॉक आएगा. बराबर है? लाइक दैट. ओके, नाउ so far format is concerned, तो जो एक्चुअल फॉर्मेट है एज इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो. आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जितने हेडिंग्स होंगे उतने खाली हेडिंग्स अपने अगर बैलेंस शीट में और P&L अकाउंट में लिखे तो भी चलेगा. आई विल कोट वन वेरी सिंपल एग्जांपल. आपका बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, मतलब पुराना हमारा लायबिलिटी साइड, इसमें हमारा सेकंड हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी. बराबर है? नॉन करंट लायबिलिटीज में अगर आपने एक्चुअल फॉर्मेट देखा है तो उसमें एक आइटम मिलेगा आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. आई रिपीट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. लाइकवाइज अगर आप एसेट्स में आते हैं तो एसेट्स में आपका जो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में आपका एक हेडिंग है आपका डेफर्ड टैक्स. तो लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट साइड में डेफर्ड टैक्स एसेट्स. तो लेट मी टेल यू दैट ये डेफर्ड टैक्स का जो कंसेप्ट है ये आपका TYBCOM लेवल तक किधर भी नहीं है. राइट? अगर ये आइटम आपका TY तक कहीं पे भी नहीं है तो ये आइटम आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है. इसलिए बैलेंस शीट बनाते वक्त, इनफैक्ट मैं जब क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ
तो विदाउट दिस टू हेडिंग्स ऑन लायबिलिटी एंड एसेट साइड मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता हूँ, क्योंकि ये चीज एग्जाम में आने वाला ही नहीं, गारंटी में रहे। इज इट क्लियर? डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट ही आपके सिलेबस में नहीं है इधर भी, वो इनकम लेवल का कंसेप्ट है, वो वहां पे आएगा। सो जितना कंसर्न पॉइंट से, अब जैसे कि मैं अगर शेयर कैपिटल की बात करूं, तो शेयर कैपिटल में एडवांसेस भी लिखे जाते हैं, एडवांस अगेंस्ट शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी वहां पे आता है। लेकिन कितना क्वेश्चन आपने देखा कि जिसमें एडवांस आपको दिखाई दिया है? बराबर है। आप एक काम कीजिए, फिक्स एसेट्स में आइए। फिक्स एसेट क्या है आपका फॉर्मेट? फिक्स एसेट में सबसे पहले आपका नंबर 1 टेंजिबल, नंबर 2 इंटेंजिबल, नंबर 3 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 4 इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। बराबर है। अब ये 4 में से आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ही आपने देखा, थर्ड फोर्थ आपने कभी देखा ही नहीं। कहने का बात है, अगर वो पॉइंट्स अगर हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो उनको छोड़ के आप फॉर्मेट बनाओ। My method is that I first prepare the balance sheet, then I will prepare the P&L account if asked, and then I start with the, then I will leave some space for notes, and then I will go for preparation of actual notes, that is share capital, isn't surplus and like that. Okay. Now, when you are, let us say one question is given based upon only balance sheet, for example. Okay, P&L की बात नहीं करूंगा, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन दिया आपको, प्लीज रिमेंबर, so there is a trial balance and there are, let us say, 8 adjustments. Now there are 3 types of adjustments. I repeat, there are 3 types of adjustment. Number 1 adjustment, this is adjustment about disclosure. Number 2 adjustment about contingent liabilities, and number 3 there is actual adjustment जो हम लोग add और less करते कहीं पे, वरना that type of adjustment. ऐसे 3 types का adjustment आपका आएगा. First type I said disclosure. Now disclosure में कौन कौन सा adjustment है मैं बता के रखता हूँ आपको. Number 1 it is regarding share capital. I repeat, number 1 it is regarding share capital. Number 2 it is regarding long term borrowings. Number 2 long term borrowings. Number 3 investments. Number 3 investments, and number 4 debtors. हो गया 4. नाउ अभी भी अगर आपको नहीं समझा मैं क्या बता रहा हूँ तो विथ एग्जांपल में क्लियर करता हूँ कि डिस्क्लोजर वाला एडजस्टमेंट मतलब क्या. आपका जो 8 एडजस्टमेंट मैंने फॉर स्टैंडर्ड मैंने बोला हुआ है, उसमें से कम 2 एडजस्टमेंट आपका डिस्क्लोजर वाला आएगा. ओके. नाउ ये 2 एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर वाला क्या है इससे समझ लो. जैसे कि बैलेंस शीट में आपको दिया है शेयर कैपिटल ₹10 लाख, खत्म. एडजस्टमेंट में दिया है ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹100. आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है शेयर कैपिटल ₹10 लाख और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आपको ऑथराइज कैपिटल ₹100. करेक्ट. नाउ ऑथराइज कैपिटल इज टू बी डिस्क्लोज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स टू अकाउंट्स. कौन सा? शेयर कैपिटल. तो ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या आएगा, किधर ऐड करेंगे किधर लेस करेंगे, नथिंग. ऑथराइज कैपिटल कितना है वो आपको खाली उधर नोट में जाके लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है और छोड़ देना है. इसे हम कहते हैं डिस्क्लोजर. बराबर है. सेकंड, जैसे कि एडजस्टमेंट में आपको सॉरी ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है लोन फ्रॉम बैंक ₹10 लाख, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक ₹10 लाख. और फिर एडजस्टमेंट में आपको दिया है दैट द लोन फ्रॉम बैंक इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग. समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है सिक्योर्ड लोन ₹10 लाख, एडजस्टमेंट में दिया है सिक्योर्ड लोन इज अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. बराबर है. तो आपको करना क्या है, जब आप नोट बनाएंगे, जब आप लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक ₹10 लाख, उसके आगे आप एक ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में लिखो सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग. दैट्स ऑल. ये भी डिस्क्लोजर हो गया. तीसरा डिस्क्लोजर है मेरा इन्वेस्टमेंट्स. तो यू आर गिवन इन्वेस्टमेंट्स ₹1 लाख इन द ट्रायल बैलेंस और फिर एडजस्टमेंट दिया रहेगा द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,05,000. करना क्या है आपको, जब आप इन्वेस्टमेंट का नोट्स बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के नोट्स में आप उसका वैल्यू लिखेंगे, आउटर कॉलम में 1 लाख और ब्रैकेट में लिखेंगे मार्केट वैल्यू ₹1,05,000. बराबर है. ये भी हो गया डिस्क्लोजर. एंड नंबर 4 इज अबाउट डेटर्स. सो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है डेटर्स ₹1 लाख और एडजस्टमेंट में दिया है आउट ऑफ द डेटर्स 10,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स. तो क्या हो गया, डेटर्स का आपको बाइफरकेशन करना है. More than 6 months old 10,000, others 90,000, again total comes to ₹1 lakh. This is called disclosure.
बराबर है। पे एंड अकाउंट में भी एक डिस्क्लोजर आ सकता है, दैट इज अबाउट ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का बाइफरकेशन, फॉर टैक्सेशन कितना किया और फॉर बाकी कितना किया, लाइक दैट बाइफरकेशन। तो दिस ऑल द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ओनली। तो ये ऐसा 2 एडजस्टमेंट आपको आएगा। देन उसके बाद 2 आपका एडजस्टमेंट आएगा। ओके, वो 2 एडजस्टमेंट रहेगा आपका लाइक कंटीजेंट लायबिलिटी। अब कंटीजेंट लायबिलिटी कौन कौन से है आपका? नंबर 1, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। नंबर 2, claim against company not acknowledged as dates. Number 3, bill discounted not yet matured. Number 4, capital commitments. बराबर है। ये 4 टाइप का आपका कंटीजेंट लायबिलिटी आएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे आपको आएगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। क्या करना है आपको? बैलेंस शीट के बाद आपको एक हेडिंग देना है कंटीजेंट लायबिलिटी, और उसके नीचे अगर आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो तो शॉर्ट करके, या फिर जो एडजस्टमेंट में दिया है एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, आपका 1 मार्क का काम हो गया। बराबर है। अब 8 में से मैंने 2 बताया डिस्क्लोजर, मैंने 2 बताया कंटीजेंट लायबिलिटी, बाकी बचा आपका 4 एडजस्टमेंट। ये 4 एडजस्टमेंट का इफेक्ट खाली आपको अभी बैलेंस शीट में देना है। उसमें भी इफ पॉसिबल, आई रिपीट इफ पॉसिबल, जहां तक हो सके एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस में ही दे दो। सॉरी, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट देना है मतलब क्या करना है, बताता हूँ मैं। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल इज रुपीज 10 लाख, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट दिया है दैट ड्यूरिंग द ईयर बोनस वाज डिक्लेयर्ड एंड इश्यूड, बोनस शेयर्स वर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ 5:1। नो इफेक्ट टू द सेम हैज बीन गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपका शेयर कैपिटल है 10 लाख, और नीचे आपको बोला है बोनस दिया है इन द रेशियो ऑफ 5:1। इन द रेशियो ऑफ 5:1 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका बोनस आएगा 2 लाख। अब अगर आपका शेयर कैपिटल ओरिजिनल 10 लाख है और 2 लाख का आपने बोनस दिया है, तो आपका शेयर कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख। बराबर है। प्लीज रिमेंबर, हम लोग लास्ट ईयर तक जब कोई फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें ओरिजिनल अमाउंट, ऐड एडजस्टमेंट और लेस एडजस्टमेंट करके आउटर कॉलम में लेके जाते थे। इन TYBCOM व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ऐड लेस करके दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट अमाउंट लिखना। समझे आप? तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा, यूज पेंसिल फॉर दिस, नोट पेन, पेन नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन। तो व्हाट यू डू, ट्रायल बैलेंस जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें 10 लाख जो शेयर कैपिटल बोला है उसको डायरेक्टली आप 12 लाख कर दो। तो व्हाट विल हैपन, जब आप पोस्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट देखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका शेयर कैपिटल 12 लाख हो जाए। अच्छा, तो आपने 2 लाख बोनस कहाँ से दिया? रिजर्व में से दिया है। तो जो रिजर्व में से दिया रहेगा वो रिजर्व के बाजू में लिखो आप -2L, -2L मतलब -2 lakhs, दैट्स ऑल। एडजस्टमेंट मेरा हो गया, एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी मेरा हो गया इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। तो जो आपका बाकी 4 एडजस्टमेंट है उसमें से जिसका भी पॉसिबल है आपको एडजस्टमेंट का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में देना है, दे दो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से देयर आर अनरिकॉर्डेड परचेसेस ऑफ ₹20,000, एडजस्टमेंट दिया है unrecorded purchases ₹20,000. Now what is your effect for unrecorded purchases? Add to purchase, add to creditors. I repeat, add to purchase, add to creditors. ये आपका इफेक्ट है, कितना है? 20,000। तो देखो आपको ट्रायल बैलेंस में परचेस कितना दिया है, उधर जाके 20,000 डायरेक्ट बढ़ा दो। क्रेडिटर्स कितना दिया है, जो भी अमाउंट आपको दिया है, सब लेट अस से दैट योर क्रेडिटर्स गिवन ₹60,000, तो 60 + 20 डायरेक्टली उसको 80,000 कर दो। तो जहां तक पॉसिबल है आपका जो भी एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट अगर आप ट्रायल बैलेंस में दे सकते हैं तो ट्रायल बैलेंस में दे दो, तो पोस्टिंग करते वक्त आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नॉर्मली जो आपका एक कॉम्प्लिकेशन रहता है वो कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे आपका थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट हैव द पीपीटी। एक मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो उसको। ओके, नाउ दिस इज रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स। ओके, एक फॉर्मूला जो नॉर्मली हम लोग क्लासरूम में दिखाते हैं वो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको हो सकता है ट्रायल बैलेंस में 2 एडवांस टैक्स मिलेंगे, 2 एडवांस टैक्स, एक तो होगा करंट ईयर का और एक होगा लास्ट ईयर का। आर यू अवेयर कि आपको हाँ, आर यू अवेयर आपको कि प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स कैसे दिखाना है? करंट ईयर का बात कर रहा हूँ मैं, करंट ईयर का बात कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, करंट ईयर का आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स रहेगा उसमें से दोनों में से ज्यादा क्या है वो देखो। नॉर्मली प्रोविजन फॉर टैक्स इज मोर देन एडवांस टैक्स,
बराबर है, तो वो कहाँ पे आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। से दैट योर प्रोविजन फॉर टैक्स इज 1 लाख एंड एडवांस टैक्स इज 85,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ज्यादा हो गया, तो आप कहाँ पे आएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख लेस एडवांस टैक्स 85,000, आउटर कॉलम 15,000, खत्म। ये हो गया करंट ईयर का, बराबर है, करंट ईयर का। लेकिन वही अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है और प्रोविजन फॉर टैक्स कम है, रेयर केस है, लेकिन अगर होगा तो एडवांस टैक्स ज्यादा है और प्रोविजन फॉर टैक्स कम है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, वी गो टू एसेट साइड। एसेट साइड में आपका हेडिंग है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वहां पे आप लिखेंगे एडवांस टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। हो गया, ये हो गया आपका करंट ईयर। मैं अब बात करता हूँ आपका लास्ट ईयर का। तो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा आपको लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स एंड लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स। आई रिपीट, लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स एंड लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स, ये आपको मिला ट्रायल बैलेंस में। और फिर इसका एक आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट विल बी that the assessment of last year has been completed resulting into gross demand of rupees so and so. बराबर है, तो if you can read this, this is the formula for you. बराबर है, it is सेंटर में मैंने लिखा है ग्रॉस डिमांड। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे इट इज गिवन प्रोविजन फॉर टैक्स और यहाँ पे लिखा है एडवांस टैक्स। इफ यू वांट टू नोट प्लीज नोट, ग्रॉस डिमांड सेंटर में लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स और यहाँ पे लिखा है एडवांस टैक्स। देखा, तो आपको करना क्या है, ग्रॉस डिमांड कंपेयर्ड विद प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे लिखा है इफेक्ट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस डिमांड कंपेयर्ड विद प्रोविजन फॉर टैक्स, इफेक्ट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ग्रॉस डिमांड compared with advance tax if it goes to balance sheet. ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड इट। नाउ ये इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट में सबसे कॉमन एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो वही फिगर्स में लेके आपसे बात करता हूँ। दैट यूर प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ लास्ट ईयर इज गिवन 1 लाख एंड एडवांस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर इज गिवन 85,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख, एडवांस टैक्स 85,000, मैं सब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। एंड देन आपको एडजस्टमेंट में दिया है सॉरी, that the gross assessment of the previous year has been completed resulting into a gross demand of say 90,000 बराबर है। तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस डिमांड आपका 90,000 हो गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका पहले से कितना 1 लाख। अब आपका ग्रॉस डिमांड का प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ कंपैरिजन करो। हमने 1 लाख का प्रोविजन किया था, मतलब क्या हुआ, हमने 1 लाख का प्रॉफिट बाजू में निकाल के रख दिया था टू मीट दिस पर्टिकुलर लायबिलिटी, बराबर है। तो हमने कितना निकाल के रखा पीएनएल में से 1 लाख, लेकिन एक्चुअली हमारा लायबिलिटी कितना आ रहा है, ग्रॉस डिमांड कितना आ रहा है, ओनली 90,000। हमने निकाल के रखा 1 लाख, जबकि हमारा लायबिलिटी आ रहा है खाली 90,000। इसका मतलब होता है जो हमने निकाल के रखा है वो 10 शेयर ज्यादा हो गया। हमारा जरूरत कितना है, खाली 90,000, जबकि हमने निकाल के रखा है 1 लाख। 10 शेयर हमने ज्यादा निकाल के रखा, कहाँ से निकाला, पीएनएल में से निकाला। एक काम करो, वापस पीएनएल में भेज दो, मतलब वो 10,000 आप पीएनएल में ऐड करो, बराबर है। ग्रॉस डिमांड 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000, डिफरेंस 10,000 पीएनएल में ऐड किया, बिकॉज ग्रॉस डिमांड कम है एंड प्रोविजन ज्यादा है। ये अगर उल्टा रहेगा तो मतलब प्रोविजन कम और ग्रॉस डिमांड ज्यादा, तो मतलब जितना हमने प्रॉफिट निकाल के रखा उतना कम पड़ा, पीएनएल में से और निकालो, पीएनएल में से लेस किया जाएगा, बराबर है। सेकंड पार्ट, आप ग्रॉस डिमांड एंड एडवांस टैक्स दोनों का कंपैरिजन कर दो। आपका ग्रॉस डिमांड कितना हो रहा है 90,000, जबकि आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स कितना पे किया 85,000। तो जो आपका 90 लायबिलिटी आ रहा है उसमें से 85 पे करके हो गया हमारा, मतलब अभी भी हमको पे करना है कितना 5,000। तो नाउ गिव द इफेक्ट ओनली ऑफ रुपीज 5,000। कहाँ पे जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज, वहां पे आएगा आपका इनकम टैक्स पेबल रुपीज 5,000, बराबर है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने ऑलरेडी 85 पे किया है और हमारा डिमांड आ रहा है 82,000, आई रिपीट, we have already paid advance tax of rupees 85,000 and there is a
ग्रॉस डिमांड ओनली ऑफ ₹82,000, तो बैंक 82,000 का हमारा लाइबिलिटी आ रहा है, जबकि ऑलरेडी हम लोग 85 पे कर चुके, मतलब वी हैव पेड 3,000 एक्सेस, ज्यादा पे किया हमने, वो 3,000 हमको वापस मिलना चाहिए इनकम टैक्स से, जिसके हम कहते हैं इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड कहाँ पे आएगा? एसेट साइड में, कहाँ पे? आपके अदर करंट एसेट्स। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप अपना फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? पहले तो बैलेंस शीट का ड्राफ्ट बना देंगे एंड देन वी शैल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स वन बाय वन। कुछ लोग नोट्स एक साथ ड्रॉ करते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं। पहला नोट बनाओ, शेयर कैपिटल, जितना इंफॉर्मेशन है आपके पास आप लिख दो, नोट को क्लोज मत करो, 2-3 लाइन छोड़ दो। सेकंड नोट, जितना ट्रायल बैलेंस में आइटम है वो लिख दो, 2-3 लाइन छोड़ दो। थर्ड नोट लाइक दैट, आ जाओ एंड देन गो फॉर योर एडजस्टमेंट्स। फिर क्या होगा? आपका पोस्टिंग तो पूरा हो चुका है, फिर आपको एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना और भी आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके लिए क्या करना है? पढ़ते वक्त जहां जहां पे भी एडजस्टमेंट है वो सब आइटम्स को टिक मार्क करके रखना है। मतलब जब नोट्स बनाएंगे तो आइटम्स को इनर कॉलम में लेके हम लोग एक एक लाइन छोड़ के आगे जा सकते हैं। दैट वे यू कैन प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट। ओके, तो अभी आपका फाइनल अकाउंट में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। Thank you, sir. So for final account, students are asking like question में P&L और बैलेंस शीट दोनों बनाना रहेगा, मतलब एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कैसे? नहीं मैडम, बहुत कम एक्सपेक्टेशन है ऐसा। अगर दोनों का क्वेश्चन अगर आता है तो नंबर ऑफ आइटम्स बहुत कम होगा। कि नॉर्मली एक 12 to 13 से ज्यादा नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान एग्जामिनर लेता है, क्योंकि मालूम है कि अदरवाइज वो क्वेश्चन पूरा होगा नहीं बच्चों का। तो नोट्स टू अकाउंट मस्ट बी इन सीक्वेंस, अगर सपोज ऊपर नीचे होता है सीक्वेंस तो विल इट बी ओके? एक्चुअली नहीं, लेकिन हो जाता, चल जाता है। अपना हमारा एग्जामिनर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि मालूम है फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट करना इज अ बिग थिंग। जब हम लोग पेपर एसेस करते हैं तो आपने देखा होगा दैट इफ आई एम चेकिंग 100 पेपर्स तो 50 पेपर्स में भी मुझे फाइनल अकाउंट नहीं दिखाई देता। दैट्स अ फैक्ट। अटेम्प्ट करना ही बड़ी बात है। एग्जैक्टली। बट सर थैंक यू वेरी मच, आपने सभी एरियाज कवर किए एंड जैसे कि हमने बीच में भी डिस्कस किया कि द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। So student I always tell my students that suppose I am a swimming coach. Okay. Yes. तो सिंपल एग्जांपल है, आई एम अ स्विमिंग कोच। तो आप सब पूल के बाहर खड़े रहो, बराबर मैं अंदर जाके कैसे स्विमिंग करना है आपको मैं दिखाता हूँ एंड देन आप सबको मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ। तो व्हाट एक्सटेंट यू विल बी एबल टू स्विम? नहीं, यू आर गोइंग टू ड्राउन। तो हमारा अकाउंटेंसी इज लाइक दैट ओनली, अनलेस एंड अनटिल मैं कितना 10 क्वेश्चन करूं, मैं 20 क्वेश्चन करूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप खुद होके कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते, जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला नहीं है, दैट्स श्योर। तो जस्ट लाइक दैट स्विमिंग, आप डूब जाएंगे, नथिंग एल्स। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50 क्वेश्चन करो, आप 5 क्वेश्चन करो, बट वो खुद होके आपने करना चाहिए। बाकी चाहे तो आप 10 क्वेश्चन जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है बुक्स में वगैरह वो आप देखो चलेगा, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपका खुद होके वो सॉल्व होना ही चाहिए आपका, मिनिमम 5 at this junction I will say. Definitely, sir. So I'll just summarize at the end. कि students first you have to prioritize your chapters. जो आपको easy लगता है वो आप पहले prepare कीजिए, and after that practice and practice. There is no substitute for that. And once again, I extend my gratitude to DA Kembulkar sir for sparing his valuable time and delivering such an informative session for our students, which is very, very useful for the TYBCOM semester 5 examination. Finally, I also extend my gratitude to the S.S.T college principal, founder principal, Dr. J.C. Purswani sir, IPSC coordinator, Dr. Kushbu Purswani madam. I thank Department of Commerce for organizing this useful session for the student of TYBCom. I thank all the HODs, technical staff, as well as the administrative staff for extending their help to organize this event. And last but not the least, thank you very much to all the student participants for taking the benefit of this session. Thank you very much. Tomorrow we will meet with the another session of cost accounting.